Good afternoon, mate. Thank you for having me here. My name is Sudhir Anand, and I am here to share a very simple story. एक सच्ची कहानी जिसने लाइफ में काफ़ी extraordinary changes लाई. It all started in 2000 when I completed my post graduation in electronics from Jammu University, and I was looking to make a career in electronics only. I left the government jobs. During PG also I was selected for some government jobs, but I left that. I went to Pilani. And you won't believe, at that moment I didn't know where Pilani actually is, in which state it is. Maybe Himachal, Rajasthan or Haryana, I was not sure, but I heard about this place. There is an institute called Central Electronics Engineers Research Institute. I stayed there for 6 months. Then I got a placement in Sterlite Optical Technologies, Aurangabad. Presently, that Aurangabad is called Sambhaji Nagar. Stayed there for a year, and the actual story began in October 2001. It all started at 9 in the evening. Generally, we had 12 hours working, 9 a.m. to 9 p.m. So when I came from my office and I was just loosening my shoes and getting ready for a rest, और थोड़ा सा खाना भी बनाना था, तो आई थॉट कि अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, बाद में देखते हैं खाने का एंड ऑल. नहीं भी खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई स्लेप्ट एट 2 AM. आई एम नॉट श्योर इसको मॉर्निंग बोलेंगे या नाइट बोलेंगे. देर वॉज ए नॉक इन द डोर एंड somebody came and he said कि सर देर इज़ ए मशीन ब्रेक डाउन इन द कंपनी एंड यू हैव टू कम. बिकॉज उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर मैंने थोड़ा सा वो कर लिया था अपना एक्सपर्टीज़ काइंड ऑफ थिंग. I went there. It was around 2:45. I stood in front of that machine. It was a major overhaul and I thought कि आज अगर ये नहीं ठीक कर पाया तो कल से आऊँगा ही नहीं. And you won't believe वो मशीन ठीक नहीं हुई उस दिन उस रात whatever. And I told my supervisor, the immediate senior over there, कि सर मैं कल से नहीं आ रहा. He said, सुधीर सभी ऐसा बोलते हैं, you are at such a position in a very short period of time, तुम definitely आओगे. But next day I didn't come. And he came to my room in the evening कि क्यों नहीं आया. तो मैंने बोला सर I want to go. I want to go back to my place. I want to do something for my people and for myself only. I stayed there for a week. Explored the local region over there, औरंगाबाद. Otherwise नहीं देखा था वो. During office hours कभी भी नहीं time मिला. उसके बाद I went back from there and actually I came to my native place Sundarbani. You must have heard Sundarbani is a small town in Jammu region only. No vision, no plans, no roadmap, what to do, didn't know about it. Again, पेरेंट्स का प्रेशर था कि गवर्नमेंट जॉब करो एंड ऑल दैट. अभी भी होता होगा, आपके पास भी ऐसे काफ़ी सारे प्रेशर आते होंगे पेरेंट्स से कि गवर्नमेंट जॉब इज़ बेस्ट जॉब. आई टोल्ड माई फादर आई डोंट वांट टू डू अ गवर्नमेंट जॉब. ही सेड कि जब लगेगी ना तब बोलना. आई अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू इन रजौरी. डिस्ट्रिक्ट रजौरी है हमारी. तो 2002 में मैं गवर्नमेंट टीचर लगा. मैं घर आके पापा को बोला कि मैंने नहीं करना. उन्होंने बोला अब छोड़ दे, सो दैट वी कैन टेल पीपल कि नहीं किया खुद से. अब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ ही नहीं और तुम बोलो मैं नहीं करना चाहता. सो देर इज़ नथिंग लाइक दैट. आई केम टू जम्मू इन 2004. आई ट्राइड टीचिंग इन सुंदरबनी आल्सो, बट इन 2004 आई स्टार्टेड ध्रुव इंस्टीट्यूट. एंड बिलीव मी, you all MBA guys, I had no business plan, no money, no finances. I am the first entrepreneur for my family, first person जिसने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और जम्मू आके ये डिसाइड किया कि आई विल स्टे हेयर ओनली एंड लेट अस स्टार्ट समथिंग. सो ध्रुव इंस्टीट्यूट वाज स्टार्टेड इन 2004 in a single room. 7,000 rupees was the rent, I still remember. And at the end of every month, I had a friend also. हम यही बात करते थे कि इस महीने का हो गया, अब अगले महीने देखेंगे. सो जो भी बच्चा आ रहा है, टीच दैट किड सिंसियरली. आज उसको अच्छे से पढ़ा लो, कल की वो देख लेगा. एंड दैट वन रूम लेटर बिकम वन फ्लोर एंड देन वन बिल्डिंग्स. नाउ वी हैव 2 buildings in Jammu city and we have some centers in, we have a center in Nushara in Sundarbani and we have some school tie-ups also. सब सही चल रहा था. All of a sudden COVID came, another test. And COVID में we had an option either to go online or join some big tech companies. We had so many options. But what happened, एक किसी पेरेंट से बात हुई, न्यू प्लॉट के थे,
ही सेड कि मेरा बच्चा किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ता है, मुझे तो लगता है कि वो ठीक नहीं है बट उसके सारे मार्क्स ओके हैं, मतलब डैशबोर्ड इज़ ग्रीन बट द चाइल्ड इज़ नॉट गुड, आप उसको थोड़ा एक्सेस करें। हमने उस बच्चे से बात करी एंड वी लर्न कि वो बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रहा है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देन आई रियलाइज दैट ये जो टीचिंग है, दिस इज़ नॉट जस्ट डिलीवरिंग, इट इज़ नोटिसिंग, it is actually care, and that care and notice cannot be automated. So we decided we will not go online. We had the options, और ऑनलाइन में जाना कोई बड़ा मुश्किल भी नहीं था, वी कुड हैव स्पेंड 4-5 lakhs एंड सारा डिजिटल करके हम कर सकते थे, बट उसमें यही लगा कि इसमें जो हमारा एक्चुअल विजन है वो वायलेट हो जाएगा। सो वी स्टार्टेड। थोड़ा सा हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसलिए उस टाइम जाना ज़रूरी हो गया था बिकॉज कोविड वॉज पूरा ऐसा था कि यू कैन नॉट मूव आउट, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस ली बट इन क्लोज ग्रुप्स, नॉट ओपन फॉर ऑल। और उन क्लोज ग्रुप्स में भी वी वर इन कॉन्टैक्ट विद एवरी स्टूडेंट, वी यूज टू डिलीवर द स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, एवरीथिंग, सो दैट वो स्टूडेंट्स का जो स्क्रीन टाइम है वो हम कम कर सकें। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज माई फिटनेस जर्नी, जो मैम ने आपको बताया 122 किलोमीटर एंड ऑल दैट, दिस नेवर हैपेंड ऑल ऑफ सडन। एक्चुअली आई वॉज नेवर एन एथलीट. I started this fitness journey accidentally at the age of 40. I am 48 right now. And someday while climbing up the stairs, I felt a pain in my knees. And then I thought that it is a bit early. इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था, थोड़ा 10-12 साल और निकलते तो अच्छा था. So what I did, I talked to a friend, I purchased a cycle. He took me to a shop and उसने मेरे लिए एक 30,000 रुपये की साइकिल रखी थी कि ये आप ले लीजिए. I said no, I'll take a expensive one so that I have a reason to ride. So in 2018 I spent 90,000 on my cycle. साइकिल लेके घर आया and every day I started cycling. Every day. ठंड होगी, गर्मी होगी, whatever, सुबह 4 बजे, आई एम ए मॉर्निंग प्लेयर बेसिकली. आई गेट अप एट 4:30 और मैक्सिमम 5 आज भी. साइकिलिंग स्टार्ट की, धीरे धीरे वो पैशन में कन्वर्ट होता गया. वी डिड 200 किलोमीटर्स, वी डिड जम्मू, अमृतसर, बैक टू जम्मू कंटिन्यूसली. एंड लेटर ऑन वी वेंट टू सुल्तानपुर लोधी. देयर इज ए प्लेस, देयर इज अ सिख जेंटलमैन, ही नोज दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट प्लेस. जम्मू टू सुल्तानपुर लोधी एंड बैक इट इज 550 किलोमीटर्स. दिस स्प्रेड ओवर 3 days. तो 3 दिन में हम वहाँ से वापस आए. एंड देन सडनली रनिंग ऑल्सो हैपेंड, बट अगेन रनिंग वॉज एक्सीडेंटल. Somebody told me we should start running and I said मैं तो 2 किलोमीटर नहीं भाग सकता यार, मैं कभी भागा ही नहीं. I live in रूपनगर only, very close place. एंड मेरे घर के ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, फेमस टेम्पल रूपनगर में. तो मैं वहाँ भी स्कूटी पे ही जाता था अगर कभी जाता था तो. एंड आई स्टार्टेड, एक माइंड बना लिया कि मैं रोज़ अगर जाऊँगा तो आई विल गो बाई फुट. तो रनिंग स्टार्ट किया, रन वॉक 1 स्टेप एट ए टाइम. एंड वो भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, आई started taking part in half marathons and marathons. And then in 2019 or I don't know, remember the year, there was a politician, उनका टीवी पे कुछ मैंने सुना कि अगर आर्टिकल 370 हटा दोगे तो जम्मू कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा. दिस एक्चुअली हर्ट. सी आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, आई एम नॉट, आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. दिस एक्चुअली हर्ट कि ऐसा, ये पैट्रियटिज्म जो है ये नेगोशिएबल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशनल नहीं होना चाहिए कि 370 होगा तो हम इंडियन हैं, अगर 370 नहीं होगा तो वी आर नॉट इंडियंस. देन आई मेड अप माई माइंड दैट वेर एवर आई गो आई विल रन विद इंडियन फ्लैग वेर एवर इट इज पॉसिबल, बिकॉज देर आर सम फ्लैग प्रोटोकॉल ऑल्सो. यू कैन नॉट हैव फ्लैग ऑल द टाइम. इट वॉज नॉट ए प्रोटेस्ट, इट वॉज जस्ट माई वे ऑफ सेइंग दैट वी आर हेयर एंड वी आर इंडियंस. In almost every city of India, I have ran with the Indian flag up to 42 kilometer distance. Beyond that, it is not possible to hold the flag for longer, more than 4 hours possible नहीं रहता है. And as far as मैम ने आपको बताया लद्दाख वाला जो चैप्टर था, लद्दाख I started with 42 kilometer in 2022. ये जो 42 किलोमीटर डिस्टेंस होता है, यू माइट बी नोइंग, आप में से कई लोगों को पता होगा, दिस इज कॉल्ड एज ए फुल मैराथन. I started full marathon in 2022 and there I made up my mind कि I'll do खारदुंगला challenge also. This is one of the toughest challenges in India running में. खारदुंगला challenge 72 किलोमीटर का होता है and it starts from a village called खारदुंग.
हारदुंग टू ले का जो डिस्टेंस है दैट इज 72 किलोमीटर। सो वो 2024 में किया, 23 में तो कुछ नहीं कर पाए बिकॉज एवरी टाइम यू कैन नॉट स्पेयर टाइम कि आप अपनी क्लासेस छोड़ के जाएं, समटाइम्स यू कैन मैनेज। तो 2023 में 72 किलोमीटर करके आई डिसाइडेड कि आई विल गो फॉर द नेक्स्ट चैलेंज आल्सो, एंड द नेक्स्ट चैलेंज इज़ द हाइएस्ट डिस्टेंस वहाँ का जो होता है उस पर्टिकुलर इवेंट में, लद्दाख मैराथन में, दैट्स कॉल्ड एज सिल्क रूट अल्ट्रा। दैट इज़ द टफेस्ट अल्ट्रा रन इन इंडिया एंड वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड आल्सो। इट स्टार्ट्स फ्रॉम नुब्रा वैली, आप में से कई लोगों ने लद्दाख देखा होगा। नुब्रा वैली टू ले डिस्टेंस इज 122 किलोमीटर एंड यू आर गिवन 22 आवर्स। सम पीपल से कि आपने कितना ब्रेक लिया, कितने दिन में ख़त्म किया, क्या खाया एंड ऑल दैट, दैट्स नॉट अलाउड बेसिकली। अलाउड इन द सेंस ये नहीं कि आप खा नहीं सकते, अलाउड इस सेंस में कि जितना आप टाइम ये खाने में या उसमें करोगे वो आपका टाइम काउंट होता जाएगा। सो यू हैव टू डू 122 किलोमीटर विद इन 22 आवर्स एंड बिलीव मी वो 122 किलोमीटर आज भी सोचता हूँ मैंने कैसे किया, तो अपने आप पे भी विश्वास नहीं होता है। तो उस टाइम कैसे किया, तो देयर इज अ स्ट्रैटेजी। आई जनरली डू दिस, कोई भी बड़ा सा टास्क होता है ना, आई डिवाइड दैट टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। सो आई थॉट कि आई विल रन फॉर 17 किलोमीटर, अगला 17 बाद में देखते हैं। दैट इज द सेम मेंटेलिटी जब एक मंथ का रेंट देते थे 7,000 रुपीज़, अगले महीने देखेंगे। अब 17 किलोमीटर करने के बाद ये माइंड में आता था बस 17 ही तो करना और लेट्स डू इट अगेन। सो दैट रिपीटेशन केप्ट ऑन गोइंग, और पता नहीं चला कि कैसे 20 आवर्स आई वॉज रनिंग कंटिन्यूसली एंड इन लेस देन 20 आवर्स, इन फैक्ट 19 आवर्स 47 मिनट्स, आई रीच लद्दाख विद फुल एनर्जी एंड विद ट्राई कलर इन माई हैंड। तो मैं आपको यहाँ पर कोई बड़ा बिजनेस प्लान देने नहीं आया हूँ कि यू आर MBA guys and I'll give you a business plan. I just want to say, start where you are. Take small steps. People say me कि how you stay motivated. इतना डिस्टेंस करने के लिए what comes in mind and इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है। तो मेरा थ्योरी ये है कि मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है बेसिकली। दिस मोटिवेशन इज एक्सटर्नल थिंग, सो यू नीड डिसिप्लिन इंटरनल। एंड माई फिलोसफी इज आई डोंट स्किप माई अलार्म्स। जनरली आई डोंट कीप अलार्म्स बिकॉज मैं उठ जाता हूँ, बट समटाइम्स यू हैव टू गेट अप टू अर्ली, लाइक 2 in the morning, तो उस टाइम के लिए आपको अलार्म लगाना पड़ता है एंड आई डोंट वायलेट दैट अलार्म। इफ इट इज़ 2 in the morning अलार्म सेट है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उससे पहले उठ के उस अलार्म को ऑफ करूँ सो दैट बाकी लोग नहीं जग जाएं। सो वो अलार्म बस एक सिक्योरिटी काइंड ऑफ थिंग है कि अगर नहीं जग पाया तो देयर इज समथिंग जो जगा देगा। तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना इज मोर इम्पोर्टेंट दैन बड़े बड़े विजन बनाना। बड़ा विजन बनाना इज नॉट अ बैड थिंग, बट एवरी बिगर विजन विल बी कंप्लीटेड ओनली इन स्मॉल स्टेप्स। सो स्टार्ट दो स्टेप्स, आज से ही स्टार्ट करें। वट एवर इज योर एम, वट एवर इज योर गोल। अब लाइफ भी ऐसे ही है, यू कैन नॉट लिव एंटायर लाइफ इन अ डे। Every day you have to live, you have to make small challenges. This is an advice to the student also, like if a student comes and मेरे को नीट का तैयारी करना है या इंजीनियरिंग का तैयारी करना है, IIT का तैयारी करना है, that cannot happen overnight कि आप आज ही डॉक्टर बन जाओगे और आज ही इंजीनियर बन जाओगे। आपको उस पूरे विजन को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है and try to attain those smaller aims. And I am sure कि अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसा डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाएंगे कि हमें वो अलार्म वायलेट ना करना पड़े या अलार्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, तो देयर इज़ नथिंग जो आपको स्टॉप कर सकेगा फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स। कमिंग टू दिस थीम ऑफ दिस TEDx, एक्सप्लोर, डिस्कवर, grow and evolve. This is not a framework basically, this is part of life. Every time you should be ready to explore the things. Like I went out of this city just to explore कि electronics क्या है, and then I discovered कि नहीं, this is not my cup of tea, कि मैं एक ही जगह पे इधर बैठ के, although the road map is clear, you keep on working, keep on growing, but I had something else in my mind. Maybe life has something else for me. So I discovered something else, came back, and as far as this growth is concerned, it should be slow.
This is my opinion. This is my personal opinion because I'm here to share my story. This should be slow, but this should be consistent. And you have to evolve. You have to involve people. You have to do something for the society so that you can prove your worth. There is nothing कि ये कोई पर्टिकुलर चीज़ है, लाइक कोई भी चैलेंज. आई विल गिव माई एग्जाम्पल आल्सो कि 122 किलोमीटर करना, ऐसे सोचेंगे तो 122 किलोमीटर करना थोड़ा ऐसे वियर्ड सा भी लगता है कि क्यों दौड़ना है. वाई? व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? इज इट फिटनेस? नो, इट इज़ नॉट फिटनेस. फिटनेस इज आप सुबह उठ के 40 मिनट वॉक करेंगे, दैट इज फिटनेस. ठीक है, 40 मिनट वॉक करने का मतलब यह है कि यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. बट वंस दैट पैशन, ये 122 किलोमीटर दौड़ना या मे बी नेक्स्ट ईयर 100 माइल्स, सो दिस इज समथिंग पैशन जो आपको फॉलो करना चाहिए. इफ यूर लाइक इनर कॉन्शियस सेज दैट यू हैव टू डू इट, आई एम श्योर यू कैन डू इट, बट डू इट इन स्मॉल स्टेप्स. आप अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में भी छोटे छोटे चैलेंजेस बनाइए, बिकॉज यू विल बी एंटरिंग कॉर्पोरेट सेक्टर वेरी सून. छोटे छोटे चैलेंजेस बनाइए, डेली का एम बनाइए, एंड कल तक कुछ नहीं छोड़े. जो आज करना है वो आज करना है, एंड कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ यू डेफिनेटली विल डू इट. यू अचीव योर गोल्स. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.